Good morning. Good morning. Yeah. Good morning, So, Abhijit. hello. Good morning. So, guys, before starting out, I just want to know कि आप लोग कहाँ से हो and are you a student or you're working? I'm from myself is Poonam Bagaria. I'm from Delhi. My age is 45. I just want to join this for being strengthening my body. Okay. Okay. I'm from Odisha. From ninth class from Jodhpur and ninth class. Ah, fine. I'm from Odisha. I'm a yoga instructor. I'm a student from Mumbai. Okay. Prince Simran. That's great. And others. I am Anuj. I am Hmm? from Faridabad and I am working professional. Okay. Yeah. Varun from Hyderabad. Student from Haryana. Okay. All right, guys. So, see, this is a practical session, so we are going to do along with this. हम सब साथ में calisthenics करने वाले हैं, right? तो take your time, but you will have to turn on your videos eventually. तो just make sure you have a little space, थोड़ा सा जगह, and So you're ready. today, sorry to disturbing you. Today I am not performing this. I just want to see what's going on, and Mm-hmm. the second day I will have to be joined. अच्छा, that is fine. ठीक है. I'm Madhur Kumar from Karnataka. I'm from Jhanjan, Rajasthan. Okay, so we have people across India. That is super. That is very nice. ठीक है. So guys, uh, see, calisthenics is little vast. I want to know your particular reason. Why do you want to start calisthenics? Why do you want to learn calisthenics? Or else, uh, why are you like? Why have you joined this workshop? What was the reason behind that? Improving Like, flexibility, it's about flexibility. Okay, strengthening, strengthening and flexibility. Okay. I want to be able to control my body. Mm-hmm. Control in the sense. Control in the sense I can handle my body in like different angles and Got it. So basically, you want balance strength, and all. right? Strength and balance. Yes. Okay. Okay. I'm so weak, so थोड़ा strong होना है. Okay, I go to gym. I wanted to become more strong, flexible, and want to become more hybrid. Okay, I want to learn something new apart from my daily home workouts. All right, got it. ठीक है, I got the idea. So most of you are looking for uh basically strength and flexibility. So what Yeah. basically आपको अपना strengthen करना है muscles and बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में अपने स्किल्स सीखने हैं जिससे आप बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन है ये सब में चीज़ों में वर्क कर पाओ. परफेक्ट. ठीक है. सो विल टेक द वर्कशॉप अलोंग विद दिस साइड ओनली. तो मैं आपको इस वर्कशॉप में यही चीज़ें बताऊंगा कि हाउ कैलिस्थेनिक्स विल हेल्प यू और हाउ कैलिस्थेनिक्स से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो. राइट. I want to increase strength and I just just in learning new things. Got it. ठीक है. ठीक है. Okay, so hopefully you guys are ready. Uh, कैलिस्थेनिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा अगर आपको ब्रीफ दे दूं तो कैलिस्थेनिक्स is an art form or it is a form of fitness where we use our own body weight to perform different skills. All right, and calisthenics helps you to build strength. Calisthenics helps you to like आपकी mobility flexibility increase करता है. It helps you to keep you active. It helps you to stay away from like injuries and everything because calisthenics से mobility इतनी अच्छी होती है कि you get less injure है ना. So there are a lot of benefits. तो धीरे धीरे we'll go into that. First, let us start with the session. I have 2 to 3 chats. Just a minute. Let me go through it. I go to gym and I wanted to become more strength and flexibility and want to become more hybrid. I got it.
I want to learn something new apart from my daily home. Okay. I have been practicing strengthening for a long time, but I struggle with muscle engagement and few poses and long to practice this. Okay. Main reason behind that for me, I can't do gym for all life, but I want to know. Okay, ठीक है. I'm a beginner want to give 4 to 5 years of realistic STEM perform advanced skills. अच्छा, ठीक है. I understood. Alright guys, so let us start with the session now. I want everyone to turn on their cameras and just stay a little back from your camera screens and मैं जैसे जैसे बताऊंगा you have to do follow along with me and सो गाइज दिस सेशन इज प्रैक्टिकल सेशन. सो अगर आप काफ़ी टाइम तक इनएक्टिव रहते हो मतलब वीडियो वगैरह ऑन नहीं करोगे तो टीम माइट बी रिमूविंग यू एज वेल फ्रॉम द वर्कशॉप बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल सेशन. सो मेक श्योर कि आप यू आर एक्टिव इन द सेशन. ठीक है. either by chat, either by video on or something or practice along with us because उससे से आप सीख पाओगे राइट. ओके चलो we'll start. देखो सबसे पहले whenever we start calisthenics the first and most important thing that we do is we do the mobility part. Okay, mobility is something which helps your joints to get ready for the workout phase. Okay, तो मोबिलिटी जो है उसमें बहुत सारी ड्रिल्स बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं. ठीक है. बट हम वो चीज़ें करेंगे जो स्पेसिफिक होता है और जो हमें बहुत नीडेड होता है. ठीक है. सो ऑलराइट, सबसे पहले आई वांट एवरीवन टू स्टैंड अप and get little back from your camera screen so that I can even see well. We will start with neck up and down. So you can keep your hands on your waist or आराम से neck up, leg and down, neck up and down. Repeat it for 5 times, 6 times. Okay. So easy neck up and down. See if you feel any stiffness anywhere. Okay. And then we'll switch to right and left. So we'll go side to side, side to side. Neck ka side to side motion, guys. And then ear to your shoulders like this. Ear to your shoulders. All right. Next up, sideways arm lifts. So all the way up and down. Sideways arm lifts like this. Keep going. Keep going. Very good. All right. Front motion में arm lifts like this. Very good. Keep going. Keep going. Good. Perfect. Now the next step. Torso twist. So like this. Torso को twist करना है. Side to side. Keep going. Okay. Good. Perfect. Perfect. Okay. Next up, hip rotations. And anti-clockwise. Right. On to the next one. So now watch carefully. हमें No, I just couldn't. guys, you please mute yourself. Just a minute. Let me mute everyone. Okay. Now the next step. See, please come down. Like, move to the floor. Keep your hand like this. Okay. And watch carefully what I'm doing. मैं अपने हाथों का पोजीशन स्विच कर रहा हूँ. So first I'm into this position and then I'll switch to this and again to this.
ठीक है, बट ये हमें either you do it in a knee position or else do it in a push-up position. Push-up position में रह के like this. Switch the grips इस तरीके से. Yes, switch the grips. See guys, calisthenics में wrists are very very important. Okay, अगर आपका wrist strengthening conditioning आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, it will start paining. तो बहुत अच्छे से बहुत सारे drills करने होते हैं. So this is one of the drill. Okay, just switch हाथों को. Okay, the next one. Now watch very carefully. We are going to move the elbows like this. See, inward and outwards. Inwards and outwards. मेरे हाथ एकदम स्टेबल है, just the elbows are moving and elbows are not bending. It is straight only, just moving inwards and outwards. Inwards and outwards. Very good guys. Keep going. ठीक है। Okay. All right. अच्छे से सर। Please mute. Okay. Perfect. Now the next up. Keep your arms close to your knees. Okay. Keep your arms close to your knees. Move forward, lean. Put pressure on your wrist and then come back. Put pressure on your wrist and come back. So it will prepare your wrist for the upcoming pressure जो हम exercise में देने वाले हैं. ठीक है? It is very important. Good. Good. Okay. All right. Next up. So you have to keep your palm facing upside like this. ठीक है, ये and put little pressure. अब ये आप start कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा pressure मत डालो, हल्का सा pressure डालो. Your wrist might not be ready for this, but you have to do this. ठीक है, हल्का सा pressure देके just try to stay there and remove. Okay, good. ठीक है. Now we'll switch on to the next one. We'll start with the warm up now. ठीक है. Everyone, please stand up. We'll start with jumps. ठीक है, spot jumps. तो जगह पे jumps करने हैं. Keep going. Just jump. Simply jump. Let's go. Very good. Keep going. Superb. Nice. Keep going. Keep going. All right. Change to jumping jacks. Very good. Keep going. Good guys. Keep going. Okay, we'll change to high knees. Very good. Keep going. All right. Now, I'll say 3, 2, 1, and you have to run jageh pe as fast as possible. So, like this. Okay. 3, 2, 1, and go. Run, 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 run. Faster, guys. Faster. Come on. Yes, yes. Or थोड़ा fast. Let's go. And relax. Okay, relax. All right, done. Awesome. So, this was our mobility warm-up, guys. ठीक है? You can have a sip of water. ठीक है, if you want. I'll quickly explain you till then कि what we are actually going to do. See, जब भी हम calisthenics सीखते हैं, alright, किसी को भी एकदम scratch से calisthenics सीखना होता है, the first thing that we build, या जो सबसे पहली चीज इस पे ध्यान देना होता है, that is the foundation part.
Okay. Now foundation is something which is very broad term. Sorry. So calisthenics foundation is something which is very broad term. So उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? So see, different movements होते हैं. First is push movement, pull movement, rotational movement, ठीक है? कोर का स्ट्रेंथनिंग वाला पार्ट, ठीक है? सो डिफरेंट पार्ट्स है सब चीज़ों के. व्हेन वी बिल्ड आवर फाउंडेशन, हम इन सारे मूवमेंट्स में खुद को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है? ठीक है. सो ये जो स्ट्रेंथनिंग वाला पार्ट है, दैट इज हाउ वी स्टार्ट विद द कैलिस्थेनिक्स पार्ट. अभी जो स्ट्रेंथनिंग है करनी कैसी है, ठीक है? तो हम आज कुछ एक्सरसाइज लेंगे बिकॉज वी हैव टाइम रिस्ट्रिक्शंस. तो हम कुछ एक्सरसाइज लेंगे एंड आई विल टेल यू हाउ any of the calisthenics exercise you can break it down इस तरीके से कि you will stand somewhere onto that part. अगर मैं एक एक्सरसाइज का लैडर बनाऊं तो आप उस लैडर में कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे एट दिस पॉइंट एंड आपको ट्राई करते रहना है कि आप उस लैडर पे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाओ. जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाओगे आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, आपका बॉडी का कंट्रोल बढ़ेगा एंड आप बहुत एफिशिएंट हो जाओगे डिफरेंट मूवमेंट्स में, ठीक है? अभी अगर नहीं समझाओ नो वरीज, हम जब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस तो यू विल गेट इट. विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक एक्सरसाइजेस, ठीक है? सच एज पुशअप्स. ओके, पहले पुशअप से स्टार्ट करते हैं. सो यू विल गेट टू नो कि हाउ स्लोली वी बिल्ड पुशअप्स टू सच ए लेवल जहाँ पे यू विल सी कि ओ ये तो नहीं होगा, ठीक है? एंड यू विल स्टार्ट विथ समथिंग, हाँ ये तो हो ही जाएगा, ठीक है? तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा यू विल सी बाय योरसेल्फ. सबसे पहले आप सबको पुशअप्स पता होंगे, राइट? पुशअप्स किए नहीं होंगे पर देखे तो जरूर होंगे ना, पता तो होंगे, राइट? कि इस तरीके से पुशअप्स को कहते हैं ना, ठीक है? तो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ. सबसे पहले स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं एंड देन धीरे धीरे विल लेवल अप द स्टेप्स, ठीक है? सबसे पहले जब हम पुशअप्स कोई भी एकदम बेसिक पुशअप भी सीखना चाहता है तो वी फर्स्ट स्टार्ट विद वॉल पुशअप्स, ठीक है? वॉल पुशअप्स आर समथिंग विच आर वेरी इजी टू डू, ठीक है? मैं करके दिखा देता हूँ. यू डोंट हैव टू नेसेसरी डू दैट, लेकिन जब मैं बताऊंगा देन दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डू इट. ओके, सो आई हैव अ वॉल हियर, ठीक है? मैं क्या करूंगा, वॉल पुशअप्स करने के लिए एग्जैक्ट सेम पुशिंग वाले मूवमेंट करने के लिए मैं वॉल पर हाथ रखूंगा एंड कीप माय लेग्स बैक, ठीक है? इससे क्या हुआ, जैसे ही मैं हाथ हटा रहा हूँ माय बॉडी इज फॉलिंग ऑनटू द वॉल, ठीक है? तो इस पॉइंट पे आई हैव टू पुश टू द वॉल, पुश ऑन द वॉल टू गो बैक, राइट? सो दिस इज वॉल पुशअप, ठीक है? नाउ वॉल पुशअप्स करते समय वी आर ऑलमोस्ट पुशिंग फ्रॉम आवर शोल्डर लेवल, ठीक है? शोल्डर लेवल से हम पुश करते हैं. दैट इज व्हाई दिस पुशअप्स आर वेरी इजी, ठीक है? और हम यहाँ से ही पुशअप सीखना स्टार्ट करते हैं. वंस यू आर लाइक वेरी कंफर्टेबल विद वॉल पुशअप्स तो आप अपने हाथों को नीचे सरका सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चेयर हियर, ओके? सो आई यूज दिस चेयर. अब यहाँ पे आई कीप द हैंड्स यहाँ पे थोड़ा इंक्लाइन पोजीशन में, राइट? एंड यहाँ पे हाथ रख के आई डू पुशअप्स लाइक दिस, ठीक है? दिस इज ऑल्सो पुशअप का वेरिएशन. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे भी आपको पुशअप करने के लिए यू विल हैव टू यूज द स्ट्रेंथ पार्ट, ठीक है? जब तक आप यहाँ पे कंफर्टेबली 5 to 6 या 8 रेपिटेशंस नहीं कर लेते हो, यू डू नॉट हैव टू गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. उसी पे स्ट्रेंथनिंग करो, प्रैक्टिस करो, उसी वेरिएशन को मास्टर करो एंड देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन क्या होगा, थोड़ा और एलिवेशन कम कर दो लाइक दिस. तो यहाँ पे और कम एलिवेशन. सो आई विल कीप माय हैंड शोल्डर विड्थ अपार्ट लाइक दिस एंड देन यहाँ पे आई विल गो डाउन एंड आई विल पुश, राइट? यहाँ तक सब लोग समझ रहे हैं सबको, ठीक है? एंड मोस्टली यहाँ तक एवरीवन शुड बी कंफर्टेबल टू डू पुशअप्स, ठीक है? अगर इसके आगे भी नहीं आता तो यहाँ तक तो आता होगा. नाउ इसके आगे क्या, व्हेन यू आर डूइंग द इंक्लाइन पुशअप्स एंड उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो, देन यू हैव टू मूव टू द फ्लोर, ठीक है? उसके बाद आप फ्लोर पे मूव करोगे
and what you have to do, see carefully. See, पुशअप्स का जो मूवमेंट है, दैट इज शोल्डर विड्थ अपार्ट, हाथ रखते हैं, पैरों को सीधा करके, यू हैव टू बी इन हाई प्लैंक पोजीशन लाइक दिस, ठीक है। बट इजी करने के लिए हम नीज को नीचे रख देते हैं, दैट इज नी पुशअप्स, ठीक है। और नी पुशअप्स के भी पहले हम नेगेटिव्स करते हैं। नेगेटिव्स इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिल। तो हम धीरे धीरे नीचे जाते हैं नेगेटिव्स में, ठीक है। नीचे जाते हैं जितना हम नीचे जा सकते हैं, एंड नीचे जाने के बाद में हम छोड़ देते हैं, वी जस्ट सिंपली कम बैक एज वी कैन, ठीक है। दिस इज नोन एज नेगेटिव्स। नाउ नेगेटिव्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हेल्प करता है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। वंस नेगेटिव्स इज देयर, यू कैन स्टार्ट डूइंग पुशअप्स, नी पुशअप्स। सो नेगेटिव जितना नीचे जा सकते हो एंड देन कम बैक, इतना ही नीचे जा सकते हो, यहीं से कम बैक, स्लोली गो डाउन, रेंज इंक्रीज करो एंड देन कम बैक, राइट। दैट इज हाउ you build your strength into knee push-ups part, all right। and knee push-ups के बाद में you move to the push-ups, ठीक है। and push-ups में भी same, you first do the negatives, धीरे धीरे नीचे जाओगे, ठीक है। पूरा नीचे चले जाओगे and then you just leave, you leave and you will come back, ठीक है। उसके बाद में you will slowly go down and जहां से ही आप ऊपर आ सकते हो you will come back up again, धीरे धीरे you will increase your range and come back, increase your range and come back, right। and eventually आपका रेंज बढ़ेगा एंड आप बहुत अच्छे तरीके से पुशअप्स कर पाओगे, राइट। यहाँ तक अंडरस्टूड सबको? ओके नाउ, ठीक है। तो ये पुशअप्स है, लेकिन इसके बाद में चीजें गेट्स डिफिकल्ट, ठीक है। बट फर्स्ट आई वांट यू टू डू यहाँ तक, विच एवर, आई विल गिव यू 1 मिनट, ठीक है। विच एवर प्रोग्रेशंस यहाँ तक की बेस्ट फिट्स फॉर यू, जस्ट डू द रिपीटेशंस। आई वांट टू सी कि यहाँ तक एवरीवन इज एबल टू डू, ठीक है। इट कैन बी इंक्लाइन पुशअप्स, वॉल पुशअप्स, एनीथिंग, नेगेटिव्स और एल्स नी पुशअप्स, कुछ भी हो सकता है। जस्ट टेक योर टाइम and do this. Let's go, guys. Let me see. If you are doing good, then we can move to the difficult variations. How much push-ups are required? Do it for 1 minute, जितने max you can take out. But 15 के आसपास रखना, उससे ज़्यादा मत करना. Okay. विषम हाथ थोड़े पीछे होने चाहिए. Yes. Good Anuj. Good Farida. Nitin. बढ़िया. Shubham good. All right, Simran. Aniket good. Arvind, that is nice. Good Imani. All right, guys. Last 10 seconds. 3, 2, 1 and relax. Perfect. That is very good. ठीक है. all मतलब आपने variations को समझ ही लिया, वो समझ आ रहा है, because everyone is doing even wall push-up, knee push-ups, push-ups, सारे variations you are doing. That is very good. All right. Now यहाँ से चीजें starts to get interesting. ठीक है. तो वंस देखो आपने यहाँ तक की स्ट्रेंथ बिल्ड करी है, राइट। यहाँ तक आपने स्ट्रेंथ बिल्ड किया है। सो इसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं उसके लिए भी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होती है, बट इन अ स्पेसिफिक मोमेंट, ठीक है। तो आई विल टेल यू धीरे धीरे 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले पुशअप सीखने के बाद देयर आर 2 ways दैट यू कैन गो। द फर्स्ट वे इज द वेरिएशंस पार्ट, जहाँ पर हम अलग अलग वेरिएशन सीखते हैं। इट कैन बी क्लोज ग्रिप पुशअप्स, इट कैन बी आर्चर पुशअप्स, या फिर टाइपराइटर पुशअप्स, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ कि हमें ये नहीं करना, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ क्या क्या वेरिएशंस की मैं बात कर रहा हूँ। सी, once you are able to do push-ups, like let's say 8 push-ups, 8 to 10 push-ups अगर आप कर पा रहे हो, then you can just start with the variations part. इसमें आप close grip push-ups कर सकते हो,
आप वाइड ग्रिप कर सकते हो या फिर आप आर्चर पुशअप्स कर सकते हो। आर्चर पुशअप्स लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? या फिर आप टाइप राइटर कर सकते हो जिसमें आप नीचे जाते हो इनसाइड टू द अदर साइड एंड देन कम बैक, ठीक है? सो दिस आर ऑल द डिफरेंट वेरिएशंस। और कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करते समय हम ये सब चीज़ों को बहुत प्रैक्टिस करते हैं। इसके भी रिग्रेशंस को प्रैक्टिस करते हैं। इससे क्या होता है कि आप बहुत एफिशिएंट हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने एफर्ट लगाया कि नहीं लगाया ये सब में। और ये सब आपको लीड करता है वन आर्म पुशअप्स के लिए, ठीक है? तो आपको वन आर्म पुशअप्स पता होगा, अगर आप वेरिएशंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका वन आर्म पुशअप्स काफी इजी हो जाएगा, ठीक है? सो दैट इट लीड्स टू दैट। बट आई वांट टू टेल यू अबाउट द अदर साइड, ठीक है? सो दैट इज वेयर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ना आप पुशअप्स में जब भी आगे लीन करोगे पुशअप्स करते समय, पुशअप्स का लेवल विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट पुशअप पोजीशन में आ गया हूँ मैं, ऑलराइट? यहाँ से मैं अपने हाथों को थोड़ा 45 डिग्री रखूंगा ताकि मैं आगे जा पाऊँ, ठीक है? ऐसे। एंड फ्रॉम हियर आई एम लीनिंग फॉरवर्ड, आगे जा रहा हूँ, आगे लीन किया एंड देन आई गो डाउन एंड आई पुश। तो इफ यू कैन सी, मैं अपने वेस्ट लाइन से पुश कर रहा हूँ। हम जब नॉर्मल पुशअप्स करते हैं हम चेस्ट लाइन से पुश करते हैं, राइट? पर इसमें हम वेस्ट लाइन से पुश कर रहे हैं, ठीक है? सो इफ यू कैन डू पुशअप्स कंफर्टेबली, आपने वहां स्ट्रेंथ बिल्ड कर ली, तो आप थोड़ा थोड़ा आगे लीन करते हुए पुशअप्स करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपका डिफिकल्टी इंक्रीज होता है और आप और ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। नाउ आई विल शो यू कि अगर आप ना ये पुशअप्स कर सकते हो, इसे कहते हैं सुडो पुशअप्स या फिर प्लांच लीन पुशअप्स, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये कंफर्टेबली कर लोगे तो आप किस तरीके से एक कूल चीज कर सकते हो, ठीक है? दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप मेरे लेग्स की तरफ देखना कि जब मैं नीचे जाता हूँ माय लेग्स विल स्टार्ट टू फ्लो अप, ऊपर उठने लगेंगे। सो आई एम हियर, आई विल गो डाउन, आई लीन फॉरवर्ड, आई विल गो डाउन। मैं एक और बार करता हूँ, go down, right? If you would have noticed, तो मेरे लेग्स जो है वो ऊपर उठने लग गए थे एंड इट इज ऑन टू मी। मैं यहाँ से ऊपर उठा के आई कैन टेक इट ऑल द वे अप हैंड स्टैंड में भी, ठीक है? दिस कम्स विद स्ट्रेंथ, ओके? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पुशअप सीखने के बाद वी कैन ट्राई टू पाइक पुशअप्स, ठीक है? पाइक पुशअप्स भी कर सकते हैं। सो पाइक पुशअप्स जो होता है दे लुक समथिंग लाइक दिस। हम पुशअप पोजीशन से हमारे हाथों को पीछे लेके जाते हैं लाइक दिस, ठीक है? वी मेक अ माउंटेन टाइप पोजीशन, सी केयरफुली, है ना? एक माउंटेन की तरह पोजीशन बनाई है एंड यहाँ पर हम आगे लीन करेंगे, ठीक है? एंड विल गो डाउन एंड विल कम अप। अगर आप ये कर पाते हो दैट मीन्स आप पाइक पुशअप्स कर पाते हो। नाउ जैसे जैसे पाइक पुशअप में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आप बार बार इसे करोगे तो आपको ये कंफर्टेबल लगने लगेगा, राइट? दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन कीप योर लेग्स ऑन टू द एलिवेटेड सरफेस। लेग्स को एलिवेटेड सरफेस पे रख के आप पाइक पुशअप कर सकते हो। दैट विल ड्रास्टिकली इंक्रीज द डिफिकल्टी, ओके? एंड अगर आप में अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है, यू शुड ऑलवेज एम फॉर दिस, जो मैं अभी करने वाला हूँ। वॉच वेरी केयरफुली, मेरे लेग्स की तरफ देखना। आई एम डूइंग दिस और मैं नीचे जाऊंगा, राइट? माय लेग्स स्टार्टेड टू लिफ्ट ऑफ। सेम जैसा सुडो पुशअप्स में हुआ, मैंने आगे लीन किया, मैं नीचे गया, मैंने स्ट्रेंथ यूज की, मेरे लेग्स ऊपर उठने लग गए। पाइक पुशअप्स में मैंने आगे लीन किया, नीचे गया, मेरे लेग्स उठने लग गए। दैट इज हाउ यू बिल्ड योर स्ट्रेंथ विद दिस स्किल्स, ठीक है? इट टेक्स टाइम
बट ये सब चीजें होती है पुशअप सीखने के बाद, एंड दिस इज इमेंस। अगर आप एक भी रेपिटेशन इन सब चीजों का कर सकते हो, दैट मीन्स यू हैव क्रेजी शोल्डर स्ट्रेंथ। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट आप लोग यहाँ तक का चीजें ट्राई करो। ठीक है, विच एवर वेरिएशन फील्स गुड फॉर यू and just try it out. Let me see how you do it, guys. You can try pseudo push-ups, you can try pike push-ups. All right. 3, 2, 1 and go for it. Okay, good Farida. Pseudo push-ups are good. Okay, जो pike push-ups कर रहे हैं, try to lift your legs if it is possible. Okay, keep going. Good Tanvi, very nice, very good. Nitin, let's go. Excuse me. Sir, in pike push-up, elbows will go backward or Yeah, where elbow will face? shoulder will go forward, elbow वहीं पे रहेगा, but close to your body रहेगा. Alright, Aniket, let's go. सही है, पाइक पुशअप तो बहुत अच्छा है. Just try to lift. Simran. Okay. Okay, relax. Okay. ठीक है guys. So there is you're doing good. मतलब पहली बार कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो. But there are few cues जो आपको पता होने चाहिए. मैं बताता हूँ. Whenever you are doing pike push-up, watch very carefully. सिमरन, फरीदा, आप सब लोग ध्यान से देखो. क्या हो रहा है जब हम पाइक पुशअप्स कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले पोजीशन समझो. हम माउंटेन पोजीशन में आ गए. ठीक है, इस पोजीशन में आ गए. यहाँ से हमें सबसे पहली चीज जो करनी होती है वो है लीनिंग फॉरवर्ड. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आना. दिस लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना आपका शोल्डर पे जो प्रेशर आता है पाइक पुशअप्स में वो नहीं आएगा. ठीक है, उसके बाद whenever you are going down, ठीक है, whenever you are going down, आपको एल्बोस को पीछे नहीं लेना, शोल्डर्स को आगे लेना है. ठीक है, you can understand it in this way. See, I have a bottle here. ठीक है, मैं ये बॉटल को ऐसे रखूंगा. ठीक है, इसके आगे मैं अपने हाथों को प्लेस करूंगा. ठीक है, एंड फ्रॉम हियर अगर मैं नीचे जाते समय अपने एल्बोस को पीछे लूंगा तो ये बॉटल गिर जाएगा. What I have to try? I have to try कि मैं इसके एकदम क्लोज ही हाथ रखूं, बट मैं जब नीचे जाऊं बॉटल ना गिरे. That is when you are putting a lot of pressure on your shoulders, right? ये एक चीज. दूसरा, I guess Simran, when Simran was doing 5 push-ups, you were going down like this, and then push-up position से you were coming up. ठीक है, हम जब पाइक पुशअप्स करते हैं हम वर्टिकल पुशिंग मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमें वर्टिकली ही नीचे जाना है और वर्टिकली ही ऊपर आना है, बट कीपिंग द लीन सेम. लीनिंग मोशन रखना ही है, राइट? वी डोंट हैव टू कम बैक. तो जब आप पुशअप पोजीशन में जाते हो वापस लीन कम कर लेते हो तो यू आर मेकिंग इट इजी फॉर यू. ठीक है, तो वो शोल्डर स्ट्रेंथ का बिल्ड नहीं होगा. ठीक है, दिस 2 cues एवरीवन गॉट इट? समझ गया सबको? ठीक है, अब जो लोग लेग्स लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आई गेस हु वाज ट्राइंग, कैन जस्ट रेज योर हैंड. यस, व्हाट इज नेम, बिस्म, राइट? आप जब लेग्स लिफ्ट करने का ट्राई कर रहे थे एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, जस्ट दैट कि आपको और थोड़ा आगे लीन करना पड़ेगा.
और आपका शोल्डर को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज आप फॉर्म वगैरह सब सही था, बट जब आप नीचे जा रहे हो शोल्डर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगा पा रहे हो कि आपके लेग्स जब उठे तो पूरा लोड शोल्डर ले पाए। तो सॉल्यूशन फॉर दिस इज मोर ऑफ डूइंग दिस। जितना ज्यादा करोगे उतना। आपके लिए एक और ड्रिल मैं बताता हूँ, यू कैन प्रैक्टिस दिस इज वेरी यूजफुल। आप एलिवेटेड पाइप पोजीशन में रहो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। फ्रॉम हियर यू विल गो डाउन, ठीक है, नीचे जाके शोल्डर स्ट्रेंथ यूज करना है और कंट्रोल में लेग्स का मूवमेंट करना है। वॉच वेरी केयरफुली, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हियर लाइक दिस, समझे क्या किया मैंने? पाइप पुशअप में नीचे गया, यहां से लेग्स कंट्रोल में निकाले, टच किया एंड वापस लेके रख दिया। जंप नहीं किया, फटका नहीं, कुछ नहीं, वो कंट्रोल लाया, राइट। ये छोटे छोटे कंट्रोल्स जो आप सीखते हो, दैट इज हाउ, किसने तो बोला था बॉडी कंट्रोल सीखना है, दैट इज हाउ यू बिल्ड दैट कंट्रोल, द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, बट इसमें बहुत सारे इजी वेरिएशंस होते हैं जहां पर हम ये चीजें सीखते हैं कैलिस्थेनिक्स में, तो दैट you can start with, and then slowly if you have good strength like him, then you can try this one as well. This is very useful, this is very fun as well, और आप करोगे तो आपको मजा आएगा। इवन अगर आपका ये जो हमने पाइप पुशअप्स किए और ये सब चीजें जो किए, अगर आप ये सब करते हो, then it helps you a lot in handstand push-ups, because handstand push-ups का movement is same to this movement। यहाँ पे जो हम स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं वही हम हैंडस्टैंड पुशअप्स में करते हैं, ठीक है, इट इज एक्चुअली सेम। सो दैट इज हाउ यू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। वन मोर अटेम्प्ट देते हैं, ठीक है, वन लास्ट अटेम्प्ट फॉर दिस। ट्राई गुड फॉर्म के साथ करना, इफ थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो मैं बता दूंगा लास्ट टाइम, ओके। चलो गेट टू द पोजीशन। चलो गाइस, विल स्टार्ट इन 3 2 and 1, let's go। मच बेटर सिमरन, बट लेग्स को और आगे, हाँ गुड। नितिन नाइस, लीन करो आगे और होल्ड करो, चलेगा। हिप्स को ऊपर ही रखो नितिन, डोंट लेट योर हिप्स गो डाउन, यस। लुक फॉरवर्ड, डोंट लुक एट योर स्क्रीन, लुक फॉरवर्ड, आई सी। हाथ, इफ यू आर कीपिंग योर पाइप पोजीशन तो हाथ सीधे, यस, हाथ को सीधे रखो, एंड देन जब आप नीचे जा रहे हो दैट इज व्हेन यू बेंड योर आर्म्स। अपने हाथों एंड पैरों में डिस्टेंस कम से कम रखो, बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं चाहिए, जितने में आप, यस, वेरी गुड गाइज, perfect, superb। Okay guys, last 10 seconds, try to do। This is good, Simran। Okay, 3 2 1 and rest। Okay, this time it was much better, but यार अभी उनका कैमरा ऑन था, ऑफ कर दिया उन्होंने। I want to tell him something, मैं नाम पढ़ना भूल गया, कोई बात नहीं। So that is good, that was good। अभी आपने जो किया that was much better, ठीक है। that is how you build your strength with these regressions, ठीक है। मैंने एकदम बेसिक से बताया आपको, वॉल पुशअप से। हम वॉल पुशअप से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वी लेवल अप ऑन टू समथिंग विच इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली बहुत अच्छी बिल्ड होती है ना। एंड इट इज ऑल बॉडी वेट, हमने एक भी इक्विपमेंट का यूज नहीं किया है, बट स्टिल यू मस्ट फील, अगर आप इसको ज्यादा करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग बिल्ड होगा, राइट। लेट इतना सब कुछ समझे, शो में थम्स अप इफ इट इज क्लियर। कोई डाउट है इस चीज में तो यू कैन आस्क नाउ, बिकॉज बाद में विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एनीवन, एनी क्वेश्चन? यस।
Can you show the जब lean pseudo push-up equal? या ठीक है. व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? कोई और भी पूछ रहा था? पाइप Can you पुशअप show में me जब the लीन फॉरवर्ड pseudo? करते हैं ओके, सिमरन मुझे समझ गया. अदर वन अनमोल. यस. पाइप पुशअप में लीन फॉरवर्ड करने पे रिस्ट अनकंफर्टेबल फील होता है. हाँ, यस यस. सो इट इज स्टार्ट, दैट इज व्हाई इट इज. जो अभी मैंने मोबिलिटी में बताया ना कि हमें ये सब चीजें बहुत करनी होती है रिस्ट के लिए. तो आप जब उसे बहुत ज्यादा करते हो तो आपका रिस्ट स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग दोनों होता है. देन इट इज नॉट पेनफुल. फॉर स्टार्ट यू कैन यूज पैरलेट्स और समथिंग जिसमें न्यूट्रल ग्रिप होती है. ठीक है, इसमें आपका बॉडी इज लाइक आर्म इज लाइक न्यूट्रल पोजीशन में, दैट यू कैन यूज. लेकिन इवेंचुअली आप रिस्ट पे भी कर पाओगे. यस. सूडो पुशअप्स करके दिखाऊं या बता, उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें जाननी है आपको? ओके, करके बताऊं. ठीक है. सो सी, पाइक पुशअप्स और सूडो पुशअप्स में दोनों में ना एक चीज कॉमन है, दैट इज प्रोट्रैक्शन. ओके, सो प्रोट्रैक्शन क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ. ऑलराइट, सी गाइस, प्रोट्रैक्शन को समझो. हम जब नॉर्मल पुशअप्स कर रहे हैं, मेरी बैक इज फ्लैट नाउ. ठीक है, इट इज नथिंग, इट्स फ्लैट. जैसे ही मैं अपने शोल्डर्स को यहाँ से आगे लूंगा लाइक दिस, ठीक है, और मैं अपने शोल्डर्स को कानों से दूर नीचे लूंगा. दोनों मूवमेंट्स है. शोल्डर्स फर्स्ट फॉरवर्ड एंड डाउन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट प्रोट्रैक्शन इज. आपका अपर बैक ओपन होता है. ठीक है, सो व्हेन यू डू पाइक पुशअप्स और सूडो पुशअप्स, आपको प्रोट्रैक्शन रखना होता है. ठीक है, once you have protraction, then it becomes super easy for you to do pike push-ups or pseudo push-ups. तो pseudo push-ups में हमारे हाथों को 45 डिग्री पे टर्न कर लेते हैं like this. We lean forward, push-up position से we lean forward and we do the same protraction. So shoulders forward and down. Did this, ठीक है, प्रोट्रैक्शन आ गया. एंड जब तक जितना लीन कर सकते हो उतना लीन किया, we go down and we come back up with maintaining the same protraction throughout the exercise. ठीक है, स्टार्टिंग जब होती है, कोई स्टार्ट करता है तो जब हम नीचे जाते हैं प्रोट्रैक्शन ड्रॉप हो जाता है. तो आपको बार बार ध्यान रखना है कि जब भी ड्रॉप हो रहा है वापस ऊपर आके वापस प्रोट्रैक्शन लो, वापस करो, वापस प्रोट्रैक्शन लो, वापस करो. ठीक है, दिस हेल्प्स यू टू बिल्ड योर प्रोट्रैक्शन स्ट्रेंथ और वो आपको हर एक पुशिंग एक्सरसाइज में यूज होता है. आपने कैलिस्थेनिक्स वालों को देखा होगा. You know someone who does calisthenics, तो they are able to do a lot of push-ups in one go. मतलब 50 से ज्यादा push-ups, तो it is very common for someone who is doing from a year as well. तो why are they able to do this? Because they know the concept of protraction. They practice this a lot. तो जब आप protraction के साथ में multiple push-ups करते हो तो आपका जो muscle groups है वो protraction की वजह से back भी involved हो जाता है ना. तो you have a bigger muscle group to support your push-ups. That is why आप multiple repetition निकाल सकते हो. And वही है, calisthenics में उसकी वजह से people are able to do 100 push-ups in one set. That is a very very big thing, right? तो protraction के basis पे this is okay, solo push-ups. Is it clear? Perfect. चलो, let us move to the next exercise. One question I have Yes. कि सूडो पुशअप्स के टाइम पे आपकी नेक ज्यादा नीचे गई थी, राइट? तो उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट है कि स्ट्रेट रहना चाहिए, क्या No, करना है? it is not necessary. नेक का इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है when we do solo push-ups. Okay, It is just that कि आपको थोड़ा आगे देखना होता है. आपको एकदम नीचे मत देखो. got it. Yes, Simani. Excuse me, when we are doing push-up, the shoulders तो जब नीचे जाएंगे तब शोल्डर रिट्रैक्ट होंगे. जैसे आपने बोला कि नीचे जाते टाइम भी आपको प्रोट्रैक्ट रखना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक यू विल रिट्रैक्ट योर शोल्डर व्हेन यू गो डाउन No, एंड I understand. you प्रोट्रैक्ट व्हेन यू कम अप. Right. So it comes with practice. ठीक है, तो आप जब स्टार्ट करोगे इट विल बी लाइक ड्रॉप हो जाएगा प्रोट्रैक्शन व्हेन यू गो डाउन. एंड आप पर्पसफुली करना होता है वो चीजें. तो अगर आप सिर्फ पुशअप्स कर रहे हो, नॉर्मल पुशअप जहाँ पे आपको कैलिस्थेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, देन यू विल सिंपली डू रिट्रैक्शन. नीचे जाके चेस्ट अप रखोगे एंड देन वापस जाके यू कैन कीप प्रोट्रैक्शन अगेन.
बट व्हेन वी डू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स और ये सब चीज़ों में आगे बढ़ना होता है, देन यू हैव टू मेंटेन प्रोट्रैक्शन थ्रू आउट द टाइम. सो आपको ध्यान रखना होगा, जब आप पुशअप्स में ऊपर हो देन ऑल्सो प्रोट्रैक्शन, नीचे जगह भी प्रोट्रैक्शन मेंटेन रख के वापस ऊपर जाना. एंड इट कम्स विद पर्पसफुल प्रैक्टिस. यू आर म्यूट. एक मिनट. So when we are going up, the elbows are going out like so ये कैसे होता है, मतलब ये होना चाहिए, just give some explanation कि ऊपर आते टाइम ये बराबर, मतलब when we are going down it's going like this, and when we are going up it is protruding outside. Right. So that is flaring of elbows. It is known as flaring of elbows. आपको ट्राई करना होता है कि आप elbows को जितना close to the body रखो उतना possible अच्छा है. Like एकदम close नहीं, it is 45 degree is good enough. ठीक है. तो जब आप ऊपर आ रहे हो पर्पसफुली ट्राई करो कि एल्बोज 45 डिग्री पर ही रहे. फॉर फ्यू रेप्स स्टार्टिंग के आपको पर्पसफुल रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी. And that is a strength problem. स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट प्रॉब्लम दोनों है. आप एक रिग्रेशन एक्सरसाइज लोगे अगर लेट्स से इंक्लाइन पुशअप्स और वॉल पुशअप्स, तो उसमें आप अपने एल्बोज को ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हो अपने हिसाब से, बिकॉज आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है उस टाइम पे. व्हेनेवर यू आर डूइंग वन एक्सरसाइज जहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ ही ऑलरेडी इनफ नहीं, पुशअप्स हो गया समथिंग, तो आप पर्पसफुली एल्बोज को नीचे नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना एल्बोज को मूव कर पाओ. तो फर्स्ट रिग्रेशन में जाके प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ दिस विद गुड फॉर्म, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म इंप्रूव हो जाएगा व्हेन यू डू द डिफिकल्ट बेंच. Yes, Farida. Yeah, I was asking कि आप एक बार बता सकते हैं that Sure. protraction में कैसे पुशअप करें. So, I went to this right. अभी पहले मैं रिट्रैक्शन के साथ करके दिखाता हूँ. ठीक है, ये अगर मैं स्टार्टिंग में प्रोट्रैक्शन लिया और मैं रिट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मैं ये नीचे जाऊंगा, तो ये रिट्रैक्ट हो गया है अभी. एंड देन दिस. एंड प्रोट्रैक्शन के साथ जब हम करते हैं तो हम स्टार्टिंग में प्रोट्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, एंड यही मेंटेन रखते हुए आई एम गोइंग डाउन एंड कमिंग अप, आई एम गोइंग डाउन एंड आई एम कमिंग अप. आई विल शो यू थ्रू ऊपर वाला एंगल से, होपफुली उसमें आपको ज्यादा समझ आए. सेम पाइक में भी एक बार बता दीजिए प्लीज. ऑलराइट, सी आई एम हियर, राइट. मैंने ये प्रोट्रैक्शन लिया, ठीक है, ये प्रोट्रैक्शन मेंटेन है एंड आई एम कमिंग बैक अप. ठीक है, अब मैं प्रोटेक्शन नहीं लूंगा तो ये है, ये छूट गया और ये गया, राइट. So there is a difference between this, but ये प्रैक्टिस से आता है. The more you movement you do this and this, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के स्किल्स में. मतलब ये इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि बैक ऑफ द माइंड में ये फिट हो जाए. Whenever you are doing a difficult चीज, आप ऐसी कोई स्किल सीख रहे हो, पुशिंग में ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन आ जाना चाहिए. पाइक पुशअप में इट इज सेम. Yes. Protraction में हम ज्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे as we do will able to go down in retraction. You can go down completely as well, but जरूरत नहीं होती है. मतलब पुशअप्स का जो मसल बिल्डिंग वाला फंडा है दैट इज डिफरेंट एंड स्किल लर्निंग वाला फंडा इज डिफरेंट ना. तो जरूरत नहीं पड़ती 90 डिग्री से थोड़ा नीचे, दैट इज गुड इनफ. सो पाइक पुशअप में भी सेम. वी आर हियर, एल्बोज शोल्डर्स को कंप्लीटली ऊपर, खुद को बॉडी को ऊपर पुश किया, आगे गए, शोल्डर्स को कानों से दूर लिया, ठीक है, यहाँ पे प्रोट्रैक्शन आ गया, गोइंग डाउन कमिंग अप, ठीक है. तो हाथों को पुश किया और शोल्डर्स को नीचे किया. दैट इज हाउ यू बिल्ड अप प्रोट्रैक्शन. पाइक पुशअप में भी सेम, ठीक है. सो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, मेरा एक इशू हो रहा था कि पैर स्लिप हो रहे थे आगे जब मैं डाउन जा रहा था. पैर को वॉल पे लगा दो, है ना. ओके, ठीक है. सो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ये सीखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, डेफिनेटली पर्पसफुली करना होता है, बट इवेंचुअली यू विल गेट इट. इट इज नॉट समथिंग वेरी. जैसे अभी यहाँ पे एज का भी होगा, मतलब जैसे कोई एज का भी है कि अब किसी की एज ज्यादा है या किसी को इंजरी है, ये सब मतलब कैसे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे. अंडरस्टूड. सो सी, कैलिस्थेनिक्स इज फॉर एवरीवन. वी डू हैव पीपल जो कि 60 इयर्स के भी है, वी डू हैव जो 5 इयर्स के भी है, ठीक है.
So all the age groups को they do calisthenics. Even if someone has injuries में थोड़ा देखना होता है, ठीक है, इंजरीज में ये सब देखना होता है कि कौन सी इंजरी है, कितनी सीवियर है, वो सब चीज़ें। बट बाकी तो एज का कोई फैक्टर नहीं होता है। वी हैव पीपल ऑल अक्रॉस द एज जो कैलिस्थेनिक्स करते हैं। इट इज जस्ट दैट कि आपके गोल्स क्या है वो मैटर करते हैं। इफ यू आर Okay. लाइक, मैं एग्जांपल आई डोंट नो, इफ यू आर 60 और आपको एथलीट बनना है, देन इट इज डिफिकल्ट, राइट? But if you want to do a handstand, then it is possible. We have a Okay. woman who is 64 years age. उनका नाम um, अंजू मैम है. She does handstands at the age of 64 and she started around 59 के आसपास के एज में स्टार्ट किया था उन्होंने. See, so human body is very different. So you have to मतलब If we try, explore. then we have to be do that. Yes, you have to explore कि कितना आप कर सकते हो, कितना नहीं. करने के बाद पता चलता है और मुझसे ये भी हो सकता था, है ना? तब तक तो पॉसिबल नहीं लगता है. All right, all right. चलो, let us move to the next one. Okay. तो as you know कि calisthenics में what is the time? It is almost 9. तो calisthenics में core is very important. Okay. तो कोर डिफरेंट तरीके से इम्पोर्टेंट होता है. इट इज नॉट जस्ट कि आपके 6 पैक एब्स है कि नहीं, ठीक है, उससे कोर डिफाइन नहीं होता. कोर की स्ट्रेंथनिंग इज मोर ऑफ मूवमेंट बेस्ड. आपका कोर इज सेंटर ऑफ योर बॉडी. जब भी मैंने हैंडस्टैंड किया अभी और एल्स आई एम डूइंग पुश अप और समथिंग, तो उसमें कोर इज ऑलवेज एंगेज्ड, ठीक है. बट उसे समझना होता है कि हाउ वी हैव टू एंगेज दैट पार्ट. तो मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ. तो वो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर मुझे भी इवन स्क्रैच से कैलिस्थेनिक्स सीखना रहा तो इवन आई वुड डू दैट, ठीक है. तो मैं बताता हूँ. पीपल आर आस्किंग फॉर दिस recorded session, but yeah, classes are not recorded. This is completely live, okay? Agar if you miss this, you won't be able to watch this out. Okay, so let me quickly tell you about the exercise. मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा एंड धीरे धीरे बिल्ड इट अप. देखो, सबसे पहले हम हमारी लोअर बैक को जमीन पे रखेंगे, ठीक है, और पूरी बॉडी अप लाइक दिस. तो इफ आई टेल यू फ्रॉम स्क्रैच, तो पहले लेट जाएंगे जमीन पे. From here, I'll take my upper body up like this. ठीक है. I'll take my lower body up like this. ठीक है. अब मेरी body is completely on the lower back. Lower back में gap नहीं होनी चाहिए. It should be on the ground. You can keep your hands forward. ठीक है. This is the starting position. आप यहाँ से start कर सकते हो. And this is simple. This is not tricky. ठीक है. यहाँ से जैसे ही आप अपने लेग्स को आगे लेना स्टार्ट करोगे, इट विल बिकम डिफिकल्ट. ठीक है. धीरे धीरे यू कैन ट्राई टू स्ट्रेट योर लेग्स इस पे. तो एट दिस पॉइंट इट इज डिफिकल्ट, बट ट्राई कि इसमें भी लोअर बैक शुड बी ऑन द ग्राउंड. इफ यू कैन डू दिस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. बट अगर इसको और डिफिकल्ट करना है तो इस पॉइंट से आई विल टेक माई हैंड्स बैक and here. इसमें भी my lower back is on the ground. I'm here and I'm holding it. This is known as hollow body hold, right? Now लोग hollow body hold करते हैं, but इससे जो actual हमें benefit मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, because they don't know why we are doing this. To understand that part, see, you do any of the exercise, ठीक है, any of the exercise, your body should feel like calisthenics specific. Your body should feel like one. What I mean to say, legs अलग movement कर रहे हैं, आपको body अलग movement कर रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए. It should feel like one. As in boat. एक boat कैसी होती है? अगर एक boat है, boat को अगर आप एक side से push करोगे, दूसरी side ऊपर आएगी, right? तो वो connection जो है वो हमें हमारे body के अंदर लाना होता है, ठीक है. अगर मैं hollow, तो वही यही एक्सरसाइज हमें वो कनेक्शन लाने में सिखाता है, ठीक है. जो वॉबलीनेस होती है, अगर आप हैंडस्टैंड्स करोगे और समथिंग तो आपका बॉडी वॉबल होगा, तो वो सब जाएगा. तो जब हम ये हॉलो बॉडी होल्ड करते हैं, ठीक है, एंड इफ आई एम दैट एंगेजमेंट में वो रख रहा हूँ, नॉट जस्ट कोर, इवन माय ग्लूट्स, इवन माय टोज, इवन माय हैंड्स, मैं हर एक मसल ग्रुप को इतना एंगेज करके रख रहा हूँ कि इफ समवन पुशेस मी मेरे हाथों से, तो मेरा लोअर बॉडी विल कम अप.
ठीक है। और अगर कोई मुझे पैरों से पुश करे तो मेरा अपर बॉडी विल कम अप। इट इज दैट कनेक्शन जो हमें बिल्ड करना है। इतना स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रॉन्ग रहना है इस पोजीशन में। इफ यू सी दिस पोजीशन, ठीक है, अगर आप इस पोजीशन को देखो और अगर आप एनी डिफरेंट स्किल देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप हैंडस्टैंड ही देखो तो हाउ डू आई शो यू, अगर आप हैंडस्टैंड ही देखो तो दिस एंड दिस आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अगर कोई मुझे यहाँ से उठा के हैंडस्टैंड पोजीशन में रख दे तो मेरी बॉडी होल्ड करेगी, है ना, बिकॉज दिस इज द एंगेजमेंट जो मैं हैंडस्टैंड में रख रहा हूँ, राइट। इज इट क्लियर? शो मी थम्स अप इफ इट्स क्लियर। ओके, सो लेट अस ट्राई हॉलो बॉडी होल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ यू आर डूइंग रॉन्ग तो मैं बता दूंगा डेफिनेटली। जस्ट मेक श्योर वन थिंग, लोअर बैक शुड बी ऑन द ग्राउंड। जिस पॉइंट पे लोअर बैक उठ रही है, स्टॉप द एक्सरसाइज। चलो गो फॉर इट। ऑलराइट, हाँ, विल स्टार्ट विद बेसिक फर्स्ट। वेरी गुड तन्वी, होल्ड इट। हाथ आगे, डोंट कीप योर हैंड्स ऑन योर, हाँ। And now slowly try to do the difficult variation. Good. Very good. Make sure lower back is on the ground. ठीक है. Core might feel a lot, ठीक है, but करना है. चलो चलो. Hold it. Very good. Very good. You guys are doing very good. Very good, Imani. HP. I don't know your name. You're doing very good. Superb. Who's this? Zoom user. यार नाम. Venkatesh. It's good. Farida, lower back is on the ground now. मुझे I can't see. Just make sure it is on the ground. Aniket, let's go. Anmol, chalo, go for it. Anuj, superb. 3, 2, 1 and relax. Awesome. Core feel होगा, right? Core में वो burning sensation feel होगा if you're doing it long time. I want to know your name. HP. HP नहीं बुलाना क्योंकि मुझे कृति। सॉरी, कृति। कृति। यस। आपका हॉलो बॉडी बहुत अच्छा था. That was very nice. थैंक यू। वेलकम. और Zoom यूजर, आपका भी अच्छा था. आपका भी नाम मुझे नहीं पता. आपका नाम क्या है? One with white t-shirt and black shorts. Okay, ठीक है. I'll get to know. So that was very good. किसी को कोई डाउट है hollow body hold में? Because you already are doing good. एक चीज मैं बताता हूँ, हाउ यू विल, अगर आपने लेवल 1 से स्टार्ट किया, लेवल 1 से जो सबसे इजी वेरिएशन है, ठीक है, उससे अगर आपने स्टार्ट किया है, हाउ विल यू गेट टू नो कि कब नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना? सो व्हेन योर बॉडी इज वेरी यूज्ड टू द पर्टिकुलर वेरिएशन जो आप कर रहे हो, इवन फॉर एनी अदर एक्सरसाइज, ठीक है, अगर हमने पुश भी किया, आपको कैसे पता कि आप रेडी हो पाइक पुशअप्स के लिए, आप रेडी हो सुडो पुशअप्स के लिए? आप पुशअप्स करते आ रहे हो, पुशअप्स तो कर लेते हो, लेकिन आपको कैसे पता कि जस्ट पुशअप्स सीखा है, कितने पुशअप्स करने के बाद हम पाइक पुशअप स्टार्ट करें या सुडो पुशअप स्टार्ट करें, ठीक है? तो इसे समझने के लिए व्हाट वी डू, वी गिव अटेम्प्ट्स, ठीक है? तो इफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट वेरिएशन, जो नेक्स्ट वेरिएशन है अपकमिंग, उसको आप एक अटेम्प्ट देते हो. यू जस्ट गिव अ अटेम्प्ट, रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड सी हाउ इट गोज. स्टार्टिंग में फॉर्म बेकार होगा या फिर देयर माइट बी एनी इश्यूज, है ना, नहीं होगा एक्सरसाइज या फिर बहुत गंदा सा अटेम्प्ट होगा. That is fine. Come back again, do the old variations again and again the next day or the other day, give an attempt. The more attempt you give, it will get better and slowly आप उसको adapt कर लोगे and उसके repetitions करना start कर दोगे.
एंड उसके रेपुटेशन अच्छे आने के बाद उसके बाद की जो चीज़ है उसका अटेम्प्ट दो. दैट इज हाउ यू बिल्ड दैट चेन एंड यू मेक प्रोग्रेस. ठीक है. एंड कैलिस्थेनिक्स में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज है, स्किल्स है ना. इवन हैंडस्टैंड में भी वी मेक सेम काइंड ऑफ प्रोग्रेस ना. उसमें भी यही सब चीज़ें धीरे धीरे रिग्रेशंस को ब्रेक डाउन करके एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हुए वी लर्न हैंडस्टैंड एज वेल. ठीक है. हैंडस्टैंड सीखने के लिए 1 वीक से लेके 1 ईयर कितना भी टाइम लग सकता है. इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप कितने जल्दी उसे अडेप्ट कर सकते हो. ठीक है. वी डू ट्रेन हैंडस्टैंड एज वेल. बहुत सारा मतलब हैंडस्टैंड इज लाइक आवर फेवरेट थिंग. हैंडस्टैंड बहुत पसंद है हमें बिकॉज हमने स्टार्ट ही मतलब मैंने तो स्टार्ट हैंडस्टैंड से ही किया था. मतलब मुझे वो तो बहुत पसंद है. तो आई ब्रेक इट डाउन इन सच अ वे कि हैंडस्टैंड्स को भी कि यू विल फील ओ ये तो बहुत आसान है. समझने में जाओगे अगर मैं समझाऊंगा और समझने में जाओगे आपको लगेगा हाँ ये तो हो सकता है, पॉसिबल है. व्हेंस यू स्टार्ट डूइंग इट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. इट इज लाइक बॉडी कंप्लीट अपसाइड डाउन होती है. एंड देन आप में से कितने लोगों को हैंडस्टैंड सीखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो. ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन. ग्रेट ग्रेट. ठीक है ठीक है. सो व्हाट विल डू वन थिंग. सो आज तो अगर मैं हैंडस्टैंड शुरू करूंगा तो हमारा टाइम अप हो जाएगा. कल का सेशन हम हैंडस्टैंड्स और स्किल्स का रखते हैं. ठीक है. तो स्पेसिफिकली हैंडस्टैंड पे फोकस करते हैं. लेट अस सी आप अभी हैंडस्टैंड्स में लाइक कहाँ पे स्टैंड करते हो एंड वहां से आप किस तरीके से और आगे प्रोग्रेस कर सकते हो. मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा प्रॉपर तरीके से हाउ यू कैन मूव दैट, है ना. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी हम ट्राई करेंगे. ठीक है. ओके, लेट अस मूव टू वन मोर एक्सरसाइज. ओके, तो आप लोगों ने आप डाइट रिलेटेड भी बताओ सर. आई कैन टेल यू रिगार्डिंग डाइट, लेकिन फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा. ओके, लेट अस डू अ क्विक पोल. नेक्स्ट एक्सरसाइज और डू यू वांट टू हैव कन्वर्सेशन क्वेश्चंस या फिर डाइट के रिगार्डिंग या एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बातें. जस्ट क्विकली आप एक कैन आई डू अ पोल हियर? नो. आप जल्दी चैट सेक्शन में बता दो तो जितने ज़्यादा जो चीज़ के लिए आएगा आई डू दैट. ओके, एक्सरसाइज. ठीक है. और थोड़ा एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज भी करते हैं उसके बाद विल डू दी क्वेश्चन आंसर. ठीक है. ठीक है. सो आप लोगों ने सी मैं कोर पे फोकस करता हूँ थोड़ा बिकॉज कोर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार. मतलब मैं बता नहीं सकता. आप क्या ऑटोमेटिकली कैलिस्थेनिक्स करते करते तो आपका कोर स्ट्रेंथन होता ही है चाहे आपका कोर कितना भी वीक क्यों ना हो. अगर आप कैलिस्थेनिक्स ट्रेन करते हो हर एक एक्सरसाइज में आपका कोर यूज होता है तो वो स्ट्रेंथनिंग तो वैसे भी होता है. स्पेसिफिकली भी हम ट्रेन करते हैं. आप लोगों ने प्लैंक किया है कभी? डू यू नो प्लैंक्स? मैंने किया है सर. यस यस यस. परफेक्ट परफेक्ट. सो हम थोड़ा प्लैंक को समझते हैं और थोड़ा एडवांस जाते हैं प्लैंक्स में. लेट अस सी हाउ यू डू इट. ठीक है. तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक फर्स्ट. ठीक है, जो सब लोग कर पाए. ठीक है. विल स्टार्ट विद हाई प्लैंक. ठीक है. हाई प्लैंक इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड फॉर बिगिनर्स एंड वंस यू आर स्टार्टिंग आउट और सम किसी को इंजरीज है या फिर समथिंग बट कोर स्ट्रेंथिंग करना है तो यू कैन स्टार्ट विद हाई प्लैंक्स. हाई प्लैंक्स इज समथिंग जहां पर आप अपने लेग्स को सीधा रख के पुश पोजीशन में ऊपर होल्ड करते हो. यहाँ पे भी आपका कोर एंगेज होता है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर कोर. यहाँ से अगर आपको डिफिकल्ट करना है यू कैन सिंपली बेंड योर लेग्स. ठीक है. लेग्स को बेंड करना है बट नीचे नहीं रखना है. ठीक है. बियर होल्ड कहते हैं इसे. यहाँ पे भी आपका कोर काफी अच्छा यूज होता है बट दिस आर ऑल बेसिक्स. आप स्टार्ट कर रहे हो तो इससे स्टार्ट कर सकते हो. वंस यू आर हियर अगर आप कंफर्टेबली इससे भी होल्ड कर सकते हो देन यू कैन स्विच टू एल्बोज. आप अपने एल्बोज को नीचे रख सकते हो. ठीक है. एंड देन यू कैन डू द बियर वाला दिस लेग्स बेंड करके होल्ड एंड धीरे धीरे एज यू आर कंफर्टेबल यू कैन मूव योर लेग्स बैक एंड गो इनटू दिस प्लैंक पोजीशन. ठीक है. अब जब आप इस प्लैंक पोजीशन में हो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग आपका जो हिप का पार्ट है. ठीक है.
हिप्स का एंगेजमेंट रखना है, हमें सिर्फ उस पोजीशन में आके होल्ड नहीं करना है, हमें इस तरीके से उस पोजीशन में होल्ड करना है कि चाहे अगर कोई 100 किलो भी आपके ऊपर रख दे हिप्स के ऊपर, इट शुड नॉट गो डाउन। तो आपको उसे एंगेज करके रोकना होता है। इमेजिन इन सच ए वे कि आपको कोई आपके कोर पे, पेट पे पंच करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसको टाइट कर लेगी, राइट? और सेम विद ग्लूट्स, ग्लूट्स को भी टाइट कर सकते हैं हम। तो जब आप इन दोनों चीजों को एंगेज करके टाइट कर लेते हो, दैट इज वेयर यू बिल्ड अ सॉलिड कोर, राइट? सो आपको वही चीज यहाँ पे करनी होती है। आप प्लैंक पोजीशन में हो, इस पोजीशन में देखो मेरे हिप्स ऊपर है, यहाँ से मैं एंगेजमेंट लाके कोर को एकदम टाइट कर दूंगा, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। अब इस पॉइंट से अगर कोई मेरे ऊपर 100 किलो रख दे तो आई वोंट सिंक डाउन, बिकॉज आई हैव एंगेज उस तरीके से जितना मेरा कैपेसिटी है उतना। उसके बाद अगर कोई रख देगा तो डेफिनेटली आई विल गो डाउन, बट इतना। नाउ फ्रॉम हियर दिस शुड नॉट हैपन, ओके? मतलब आप यार्च कर रहे हो या फिर बहुत ऊपर ले रहे हो। सो जब बोला जाता है प्लैंक में एक स्ट्रेट लाइन रखो, इट इज नॉट दैट कि आपको एक सिंपल स्ट्रेट लाइन रखनी है, आपको अपने बॉडी को एंगेज करते करते इतना नीचे लेके जाना है कि उससे नीचे बॉडी नहीं जा सकती। दैट इज द लास्ट पॉइंट दैट यू कैन गो, एंड वहां पे आपका कोर एंड ग्लूट्स आर एक्सट्रीमली टाइट एंड एंगेज्ड, राइट? इतना क्लियर है? ठीक है? Yes. Yes. नाउ Yes. नाउ ये है बेसिक प्लैंक, ठीक है? ये है बेसिक प्लैंक। नाउ यही चीज मेंटेन रखते हुए ही हम इसको डिफिकल्टी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है? ये नॉन नेगोशिएबल है, इसे तो रखना ही है। बट फ्रॉम दिस पॉइंट, अब आप मेरा शोल्डर देखो, शोल्डर इज अबव माय एल्बोज, राइट? एंड आई एम होल्डिंग इट हियर। वंस माय शोल्डर इज गोइंग बैक, दिस बैक जा रहा है, डिफिकल्टी विल गेट इंक्रीज। बट जैसे जैसे डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही है, जो मेरा हिप्स वाला एंगेजमेंट है दैट शुड नॉट गो, राइट? वो सेम वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो जो मैं एंगेजमेंट बता रहा हूँ दैट शुड नॉट गो, दैट शुड रिमेन एज इट इज व्हेन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट वेरिएशन। तो दिस इज द नेक्स्ट वेरिएशन। अब यहाँ पे एंगेजमेंट ले लिया है, धीरे 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 पीछे जाओगे, पीछे जाओगे, जितना पीछे जाओगे उतना डिफिकल्ट होते जाएगा। एंड द लास्ट थिंग दैट यू कैन डू इज लाइक आर्म्स, इस तरीके से आर्म्स पर आ जाओ एंड कंप्लीट बॉडी होल्डिंग एट दैट पॉइंट। बट जस्ट ट्राई इट आउट फॉर नाउ। सबसे पहले तो अच्छा प्लैंक करो, ठीक है? गुड प्लैंक, एंड वंस यू आर एबल टू गुड प्लैंक, ट्राई टू मूव बैक बैक बैक। जितना आप पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाओ, एंड जिस पॉइंट पे फील हो कि लोअर बैक दुख रहा है या फिर लोअर बैक पे आ रहा है, स्टॉप इट देयर, ठीक है? चलो लेट मी सी। सर हमारा क्लास कितने बजे तक है? एंड एक्चुअली आई वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस और ट्रेनिंग। 9:30 तक होगा, सो इसके बाद विल टॉक अबाउट दैट। ओके, चलो गाइस लेट्स गो। वेरी गुड। तन्वी हिप्स नीचे, मोर एंगेजमेंट, सक्षम बहुत अच्छा है। वेंकटेश आई कांट सी आपके हिप्स ऊपर है नीचे है ना, साइडवेज होगा तो बेटर है। यस, विद सेम विद सत्या, गुड। तन्मय आई फील कि ओके ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ, आप करो होल्ड अभी, दैट इज गुड ओनली। हिमानी, दैट इज गुड। कैन यू ट्राई एल्बो वाला हिमानी? Just go on your elbows. And hold it. Farida, hips down more. Yes, good. Okay, okay. At Kruti, right? Hips नीचे और नीचे, ठीक है, रिलैक्स। ओके, रेस्ट गाइस, ठीक है। तो आई हैव टू टेल यू दिस देन। संतोष, आपके भी हिप्स काफी ऊपर है, हिप्स शुड बी नीचे, ओके ओके। सो गाइस सी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो मुझसे बड़े हैं, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, डोंट फील बैड फॉर इट, बिकॉज उससे बेटर आई कांट कॉल यू फॉर नाउ।
ठीक है। सो सी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, व्हेन वी आर डूइंग प्लैंक्स आपको पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट रखना है, ठीक है। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, इसे समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई विल ट्राई। सी आपका जो हिप पार्ट है, ठीक है, हमेशा हमारा हिप्स आर इन आर्च पोजीशन, ठीक है। ये बैक जो है, हिप्स जो है ऊपर होते हैं, बैक में आर्च आता है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसे टिल्ट करना होता है, सो आई एम टिल्टिंग इट दिस फॉरवर्ड, ठीक है। हिप्स आर बैक, हिप्स को आगे फॉरवर्ड टिल्ट करूंगा। आई होप समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा हो। इसको जो मेरा कोर है वो बाहर की साइड है, और मेरा हिप्स जो है, ये हिप्स मेरे बाहर की साइड है, मैं हिप्स को अंदर की साइड लूंगा। तो आई डू दिस, हिप्स को आगे लिया। दिस इज नोन एज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट एंड दिस इज नोन एज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। तो हमारा बॉडी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में होता है, एंड जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो डेस्क जॉब पे है, पूरे टाइम डेस्क पे रहते हैं, उनका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और लोअर बैक के इश्यूज इवेंचुअली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ही ये सब कोर के एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन दिस। सो एज आई वाज टेलिंग तन्मय, ठीक है, कि और सेम विद समवन एल्स आल्सो, सो व्हेन यू आर डूइंग दिस आपको पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू प्लैंक्स और एनी अदर एक्सरसाइज, ठीक है। ये करोगे और एक्सरसाइज करोगे तो आपका लोअर बैक पे लोड आते जाएगा, इवेंचुअली वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे ना, सिर्फ डेस्क जॉब और बाकी की चीजें ही कर रहे हो, एंटीरियर टिल्ट बढ़ते जाता है। और अंडरस्टैंड दिस, स्पाइन टिल्ट हो रही है यहाँ से पीछे के साइड, और जितना ज्यादा लोड बढ़ रहा है, आपका वेट हेवी होते जा रहे हो आप, स्पाइन पे लोड बढ़ रहा है, उससे फिर स्लिप डिस्क और बाकी सब इश्यूज हो जाते हैं, तो बहुत पेनफुल हो जाता है। सो यू हैव टू कीप इट टिल्टेड। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, मिरर के सामने, ठीक है। गो फॉर, पहले तो वीडियोस देख लो, आपको यूट्यूब वीडियो पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंटेशन के साथ, इवन मैंने भी वीडियो बनाया होगा उसके ऊपर पहले कभी। तो इवेंचुअली उसको पहले समझो और फिर आप खुद मिरर के सामने जाके उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, और ट्राई करो कि आप इवन इन डे टू डे लाइफ, अब डे टू डे एक्टिविटीज के बीच में जब भी याद आए पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट ला दो, उससे ही वो इवेंचुअली अडेप्ट हो जाएगा, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ऐसे ही प्लान करोगे विद एंटीरियर पेल्विक टिल्ट तो पेन बढ़ जाएगा। मेरे साथ यही हुआ था। Who's this? सक्षम। हाँ सक्षम बोलो। हाँ, अभी मतलब जब मैं प्लान कर रहा था तो लोअर बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था एंड में। राइट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली, है ना। तो आपको पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट समझना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, लेट अस डू क्विक। सर ये प्लान की प्रैक्टिस कब तक, कितने टाइम तक करनी चाहिए हमें? ये ऐसा नहीं होता है कि कितने टाइम तक, आपको अपने डेली रूटीन में इसे ऐड कर देना होता है। यस, बट कितने टाइम तक, लाइक 5 मिनट्स, 1 मिनट, 30 सेकेंड्स, 20 अपना 2 मिनट्स? देखो, डिपेंड्स ऑन योर गोल, बट अगर मैं स्टैंडर्डाइज बोलूं तो 1 मिनट प्लैंक होल्ड इज गुड इनफ 2 to 3 सेट्स के लिए, दैट इज। एंड द रेप्स सर? यस, 2 to 3 सेट्स के लिए, only 2 to 3 sets, okay. That is good, but more than specific होता है थोड़ा, तो आपको क्या सीखना है उसके बेसिस पे अगर आप करोगे that is more beneficial for you, है ना। एंड ये हैंड स्टैंड्स और सारी चीजों के लिए कोर स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या सर? सी इट इज, ऐसा होता है कि दो तरीके हैं, एक तो कोर इम्पोर्टेंट, कोर स्ट्रांग होना जरूरी ही है, ठीक है, ओके, बट हैंडस्टैंड को होल्ड करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी है। तो आप अगर कोर को ओके, एंगेज नहीं भी करते हो देन आल्सो यू कैन होल्ड योर हैंडस्टैंड, बट ओके, आपको उस टाइम पे हैंडस्टैंड थोड़ा डिफरेंट दिखता है, स्ट्रेट अलाइनमेंट वगैरह नहीं दिखता है, इट इज लाइक कर्व होता है या वॉबली होगा, वो सब चीजें, वगैरह, है ना। तो यू कैन होल्ड हैंडस्टैंड विदाउट इवन वो चीजें, बट कोर के साथ करोगे इट विल बी मच बेटर, ठीक है। वो मैं आपको राइट नाउ, यस, अभी फिलहाल में लाइक मैं 100 to 150 पुशअप्स इजीली कर सकता हूँ, बट व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू डू हैंडस्टैंड, उस टाइम पे इट्स लाइक कि
कहीं गिर ना जाऊं या फिर कुछ स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से फिर मेरा आगे का प्रोसेस मैं कर नहीं पाता हूँ। राइट। अब मैंने शायद आपको देखा करते हुए, आप जब सुडो पुशअप्स और समथिंग प्लांज लीन कर समथिंग कर रहे थे तो आपके एल्बोज बेंड हो रहे थे, बहुत सीधे यस नहीं यस रहे थे शायद। आप जिम करते हो शायद बहुत, यस यस तो उस वजह से ना आपका एल्बो स्ट्रेट नहीं रह पा रहा है उस पोजीशन में। तो आपको जब भी कोई, मतलब जब हमारे पास भी कोई जिम वाले पीपल आते हैं जो जिम करते आ रहे हैं काफी टाइम से, तो मूवमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बार 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 रिपीटेशन मूवमेंट्स करने होते हैं, बिकॉज बॉडी में ओके स्ट्रेंथ होती है लेकिन मूवमेंट की प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो मूवमेंट अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो सेम विद ओके हैंडस्टैंड ऑल्सो वही चीज होगी, बट विल सी टुमारो, है ना, आराम से। ओके ओके So guys, let us do cool down first and then we'll switch to the next part. Uh, बिल्कुल ही बेसिक से पुशअप करें शुरू से, तो रफली कितना टाइम? ओके, विल डू द Q&A लास्ट में। गाइस फर्स्ट सिट डाउन कंफर्टेबल पोजीशन में, विल डू नेक डाउन एंड होल्ड इट, होल्ड फॉर 3 2 1 एंड अप, 3 2 1 to your ear to your shoulder, 3 2 1 to the other side, 3 2 1, लेफ्ट हैंड लो, राइट साइड ले जाओ एंड राइट हैंड से पुल, 3 look to the other side, 2 1 and change, 3 2 1, हाथों को आगे, pull your wrist, 3 2 1 and down, 3 2 1, switch, 3 2 1 down, 3 2 1. Okay, you'll have to go to the floor. You have to do child's pose. So kneeling position से try to touch your head on the ground, go all the way down, touch your head on the ground and hold it there. Hold for 5 4 3 2 and 1. Slowly move forward, try to touch your chest on the ground. Okay, we'll go into a cobra stretch. So lie down on the floor, हाथों को shoulders chest के बगल में, roll your shoulders back and come all the way up. Look up and hold it there. 3 2 1, come back. Get sit in a comfortable position, kneeling position हो जाए या फिर bent legs, whichever is comfortable for you, and close your eyes. Keep your eyes closed. We'll do deep breathing. So inhale for 5 seconds. 5 4 3 2, and hold your breath for 5 seconds. 5 4 3 2, and exhale for 5 5 4 3 2, and normal breathing. Try to stay calm. Focus in between your eyes. Try to go through everything that we did in the class, starting से लेकर के
All right, rub your hands till it get warm, and once they are warm, take from your eyes and open your eyes. All right, clap for yourself. Awesome. Wonderful. कैसा लगा कैलिस्थेनिक्स करके डे 1? काफी कुछ अच्छा लगा सर, सीखने भी मिला जो हम लोग सिर्फ यूट्यूब हम्म में देख रहे थे या ट्राई कर रहे थे अपने आप से सीखने की। हम्म एक्सप्लेनेशंस एंड देखना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये बात आज समझ में आई हमें। राइट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस था। दैट्स थैंक यू। ऑलराइट, तो मैं आपको लेट अस मूव टू द Q&A सेशन। ओके, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, ठीक है? सॉरी, मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया था, आई डिडंट टेल यू अबाउट मी। तो माय नेम इज अभिजीत, ठीक है? आई एम डूइंग कैलिस्थेनिक्स सिंस लाइक 7 to 8 years नाउ। एंड जब मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया था, दैट टाइम इंडिया में कैलिस्थेनिक्स नहीं के बराबर था। देयर वर फ्यू पीपल अक्रॉस इंडिया जो कैलिस्थेनिक्स कर रहे थे उस टाइम पे, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो उस टाइम पे तो कोई गाइडेंस नहीं था, आई जस्ट डिड ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है? ट्रायल एंड एरर मेथड इज लाइक, आपको कोई चीज़ सीखनी है, आप वो चीज़ सीखने के लिए मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते हो, देन यू फिगर आउट इस चीज़ से हम सीख सकते हैं, और देन उस चीज़ में आप आगे बढ़ते हो। लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज आप वो सब चीज़ें भी करते हो जिसमें नहीं होगा प्रोग्रेस, तो आपको लेकिन पता नहीं होता है उस टाइम पे। तो आई डिड दैट, धीरे धीरे वहाँ से प्रोग्रेस हुआ, एंड देन आई started teaching people first. तो first तो छोटा सा I started, then I started making videos as well. तो Instagram पे you have must have go through, आप अगर वर्कशॉप में आए हो तो might be you have seen the video only. तो there is my Instagram handle is calisthenics वाले भैया, तो आई मेक वीडियोज along that। तो यूट्यूब पे भी आई मेक वीडियोज, एंड वी हैव पीपल लाइक अराउंड 80,000 का इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, फेसबुक पे भी है, सॉरी यूट्यूब पे भी है, और 30,000 सब्सक्राइबर्स। तो पीपल आर ज्वाइनिंग इन लर्निंग कैलिस्थेनिक्स देयर, एंड द डिमांड वाज सो हाई उस टाइम पे, अभी भी, कि पीपल वांट टू लर्न, पीपल आर इवन कमिंग out of India to learn specifically. So that is how then I opened my first center, which is in Kandivali West, and it got full. Then I opened the second center, which is in Kandivali East. It is now going on. So that is how धीरे धीरे calisthenics is spreading out. The whole purpose of doing this workshops and everything is, जो भी कहीं पर भी अक्रॉस इंडिया बैठा है और अक्रॉस वर्ल्ड बैठा है, उनको कैलिस्थेनिक्स सही तरीके से सीखने मिले, बिकॉज पीपल आर लर्निंग 1 or 2 skills एंड दे आर स्टार्टिंग टू टीच कैलिस्थेनिक्स। उससे आप नहीं सीख पाओगे, बिकॉज दे डोंट नो द कोर ऑफ इट। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है, हर एक चीज़ को गो थ्रू करते हैं, तब हम समझते हैं और फिर हम समझा पाते हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस वर्कशॉप्स एज वेल, ताकि आप लोगों को मैं खुद ही बता पाऊँ कि किस तरीके से आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। कैलिस्थेनिक्स इज फॉर एवरीवन, बट देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट, तो वो वे। एंड इवन वी हैव ऑनलाइन प्रोग्राम्स एज वेल, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन इन। तो इफ समवन इज लाइक, आप, हमने जो एक दिन में किया हम दूसरे दिन भी करेंगे, वो आपको ऑन डेली बेसिस करना है। सो वी हैव अ 60 days का प्रोग्राम एज वेल। 60 days में स्टेप बाय स्टेप आपको डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट सिखाए जाते हैं, कैलिस्थेनिक्स के स्किल सिखाए जाते हैं, आपका स्ट्रेंथनिंग, आपका फिजिक पे ध्यान दिया जाता है। तो इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान दैट वी फॉलो। वी हैव अ होल टीम जो उसमें आपको हेल्प करती है। एज सुन एज समवन एनरोल इनटू द प्रोग्राम, दे गेट पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनिस्ट, उसमें दे गेट प्रॉपर कोचेस होता है, उसका टाइमिंग्स होता है। तो क्लासेस टाइमिंग्स आर लाइक मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मॉर्निंग 6 to 7, 7 to 8। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इट इज इवनिंग 6 to 7, 7 to 8, ठीक है? जिस जिस दिन इवनिंग को क्लास है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उस दिन मॉर्निंग में एक क्लास होता है, सो दैट हम डेली बेसिस पे मॉर्निंग में करें। और जिस दिन मॉर्निंग में 2 क्लास होते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, उस दिन इवनिंग में भी एक क्लास होता है, ताकि सो डेज आर ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैव क्लासेस, मॉर्निंग एंड इवनिंग, जस्ट द फ्रीक्वेंसी इज लाइक दैट। एंड क्लासेस इज समथिंग कि आप वीक में एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस अटेंड करो, दैट इज द मिनिमम दैट वी आस्क फॉर, बिकॉज उससे आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। If by any chance, if someone misses any class,
they get access to the app as well. तो we do have an app. एप्लीकेशन में आपको सारे रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग मिल जाता है. तो बाय एनी चांस अगर आपका कोई सेशन लाइव सेशन मिस हो जाता है, यू कैन जस्ट गो टू द ऐप, यू कैन चेक आउट द वीडियोस फ्रॉम देयर एंड आप उसकी प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो. ठीक है, दैट इज हाउ द होल प्रोग्राम इज. ठीक है, एंड न्यूट्रिशनिस्ट का भी ऑल्सो वाई हैव एडेड बिकॉज आई पर्सनली आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई बिलीव दैट कि न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट इज लाइक आप रोज कुछ ना कुछ, हम रोज कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, है ना, उससे से हमारा अभी जैसा अभी बॉडी बना है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. इफ यू हैव इटन अ जंक अ लॉट, आपका बॉडी में फैट ज्यादा बनेगा. अगर आप ज्यादा कार्ब्स खाए हो फिर भी फैट ज्यादा रहेगा. आपका एनर्जी कम है तो आपके बॉडी में डेफिशिएंसीज है ना. आपके पास मसल नहीं है तो आप इनफ प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके नहीं खा रहे हो, है ना. सो इट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन. आपका बॉडी कैसे शेप करता है, वर्कआउट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट. तो न्यूट्रिशन में गाइडेंस चाहिए होती है, प्रॉपर प्लान चाहिए होता है. अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है ना तो एटलीस्ट आप उसका 50% तो फॉलो करोगे. बट अगर आपके पास प्लान ही नहीं है तो आप कुछ भी फॉलो करोगे, है ना. दैट इज वाई समवन एनरोल्स टू गेट अ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनिस्ट. वो प्रॉपर आपके हिसाब से आपको न्यूट्रिशन प्लान करके देता है, राइट. That is how the whole program is. And the fees for the program is, वैसे तो it is 12,000 for this 60 days program, but the workshop attendees जो first 10 members workshop के through attend like program में enroll करते हैं, they get a flat 50% का discount. तो they get it at straight away 6,000 में. But this is for the first 10 members. So if someone from you wants to enroll, तो I'll share the link in the group chat. ठीक है, तो this link में already the coupon is applied there. ठीक है, you simply have to click on the link and go to the checkout page. वहाँ पे जो first 10 members होंगे उसमें आपको कूपन कोड मिल जाएगा. जैसे कोई 11th person try to enroll होगा उनको कूपन नहीं मिलेगा. तो I have sent the link. You can check that out and you can enroll. And the number, I am sending you a number as well, WhatsApp का. Once you make the payment, enrollment हो जाता है, just send the screenshot of that into this WhatsApp number. So the team will also add you. I'll take 3 questions first for this program specifically. किसी को कोई डाउट अगर है, और फिर we'll move to the general Q&A part. Sir, can you give me a rough routine for the whole week? So whole week is divided in such a way कि आपका हर एक एस्पेक्ट ऑफ कैलिस्थेनिक्स कंप्लीट होता है. आपकी स्किल्स को लेके आपका हर एक एलिमेंट का स्ट्रेंथनिंग होके. सी इफ यू वांट टू अचीव एनी वन स्किल तो सिर्फ वो स्किल को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम उसके अलावा बाकी सारे जो मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं वो सबको भी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, मनन. सो दैट इज वाई हम रूटीन्स करते हैं. जैसे हमने आज 1-2 एक्सरसाइज की, 3 एक्सरसाइज की है गेस, पर जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, हम ऑन डेली बेसिस ऑलमोस्ट 8 एक्सरसाइजेस, 8 to 9 एक्सरसाइज ऑन एवरी डे करेंगे. तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा बॉडी वेट एक्सरसाइजेस का, है ना. डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स आपकी बॉडी करेगी. इट विल बी मोर बेनिफिशियल उस हिसाब से. सर अगर मैं पुलअप सीख रहा हूँ तो उसके साथ मेरे को दूसरी एक्सरसाइज करनी चाहिए या पुलअप पूरे वीक करना चाहिए? पुलअप पूरे वीक नहीं करना चाहिए आपको. पुलअप के रिग्रेशंस, पुश, सारा कुछ करना चाहिए, सर है ना. मतलब वीक में कितने बार तक मैं पुलअप सीख सकता हूँ अगर मैं लर्न कर रहा हूँ? इट डिपेंड्स, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा. आपके इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा. अगर आप लो इंटेंसिटी कर रहे हो, रोज कर रहे हो, चलेगा. अगर आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हो तो अल्टरनेट डेज करना पड़ेगा बिकॉज बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत होती है. तो उस हिसाब से आपकी इंटेंसिटी पे इट विल डिपेंड. I want to get into calisthenics, so what should be my 1 month goal as complete beginner? Okay, I'll take this question, but किसी को अगर इसके अंदर अगर if you are into gym or yoga, so what should be the routine? Because I'm a yoga practitioner from past few years, so I can't skip that. Definitely, yes. So see, calisthenics और योगा तो बहुत अच्छे से मिक्स होता है. मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर मेंबर्स आर योगा प्रैक्टिशनर्स जो भी इसमें एनरोल होते हैं. बिकॉज कैलिस्थेनिक्स हेल्प्स देम अ लॉट इनटू योगा स्ट्रेंथनिंग वाइज, है ना. उनके मसल स्ट्रेंथ होते हैं तो योगा में बहुत हेल्प होता है. तो यू कैन मैनेज इट बोथ. कैलिस्थेनिक्स का सेशन कर लिया, बाकी के टाइम पे यू कैन प्रैक्टिस योगा एंड वो सब चीज़ें. इफ़ यू आर अटेंडिंग 3 days a week तो 4 days यू कैन डू योगा. इस हिसाब से यू कैन डू दैट. तो आपका दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से अलाइन होगा.
और अगर हम जिम भी करें, लाइक वी आर लिफ्टिंग वेट्स आल्सो, सो व्हाट्स योर सो टेक ऑन दैट? सो उसको हम इस तरीके से मैनेज करते हैं, यू गिव अस द रूटीन, आप जिम में क्या करते हो, विल ब्रेक इट डाउन एंड टेल यू कि कौन से एक्सरसाइज आप जिम से करो इफ इट इज रिक्वायर्ड, है ना, आपको स्पेसिफिकली आपके गोल्स के हिसाब से। बाकी यू डू कैलिस्थेनिक्स ओनली। कैलिस्थेनिक्स से आपको वो सारी स्ट्रेंथ मिल जाएगी जो आपको जिम से मिलनी है ना। बट अगर कोई यूज टू है करने के लिए और वो करते जा रहे हैं जिम, तो वी गिव देम दैट थिंग कि आप उस तरीके से जिम कर सकते हो, है ना। What equipments are required in online class? So when you start calisthenics online में, you don't need any equipment। जैसे हमने आज किया, it was completely body weight, हम उससे से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करना स्टार्ट करते हो, द कोचेस एंड एवरीवन वी लुक ऑन टू यू, हाउ यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, आप कितना कर रहे हो, उस हिसाब से भी सजेस्ट यू कि विच इक्विपमेंट यू शुड गो फॉर। बेसिक इक्विपमेंट होता है जो कि इजीली अवेलेबल है और लाइक उसका प्राइस एंड एवरीथिंग लेस होता है, वैसा वो सब चीज़ें से। Sir, there remains pain only near my left shoulder at the back. How can I permanently reduce pain? So, क्रांति, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, हम इस पे आते हैं, विल कम टू दिस। If anybody has any more question regarding this first, then I'll take it. So we get individual plans for everyone regarding the workout and communication. No, workouts तो group classes है ना, तो उसमें proper सबके साथ में ट्रेनिंग होती है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इस तरीके से ग्रुप क्लास रखे हैं कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड आपके साथ में ऑन द स्क्रीन समवन एल्स इज ऑल्सो डूइंग, तो आप देखते हो कि यू आर डूइंग लेवल 1 और दे आर डूइंग द नेक्स्ट लेवल और डिफरेंट वेरिएशन। दैट इज वेयर यू बिल्ड योर माइंडसेट इन सच अ वे कि यार वो भी करना है, और धीरे धीरे यू ट्राई टू डू दैट थिंग्स। और वो क्लास में अलग ही जोन होता है, तो पीपल आर सो एंगेज्ड, एक दूसरे से बात करते, इट बूस्ट्स यू अप। और न्यूट्रिशन प्लान सबके लिए इंडिविजुअल होता है, बिकॉज दैट हैव टू बी इंडिविजुअल, वो कॉमन नहीं हो सकता। सर, ऑनलाइन ग्रुप क्लास रन थ्रू आउट द ईयर? इट सी फर्स्ट 60 डेज प्रोग्राम होता है, उसके बाद एट द 68 डे आपका फिर से असेसमेंट होता है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, द डे 1 पे आपका असेसमेंट होता है। आपका असेसमेंट होता है कि आप कितना कर सकते हो, उसके हिसाब से आपका भी प्लान वगैरह सब कुछ बनता है। एंड डे 60 पर भी होता है। डे 60 पे आप कहाँ पे कितना प्रोग्रेस किया है आपने, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको सजेस्ट किया जाता है कि व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट। वी हैव ऑल द स्ट्रक्चर। अगर कोई एक्सट्रीम बिगिनर से उसको एथलीट बन के इंटरनेशनल स्टेज में ट्रेन करना है, परफॉर्म करना है, वी हैव ऑल सिस्टम्स टू डू दैट। उतना हम कैपेबिलिटी रखते हैं कि किसी को एकदम स्क्रैच से लेके एथलीट बना दे, तो एवरीथिंग इज देयर, जस्ट दैट स्टेप बाय स्टेप होता है सब कुछ। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू गो थ्रू इज 60 डेज प्रोग्राम। सर, बिल्कुल बेसिक से पुशअप्स करते हैं तो हैंड स्टैंड में, ओके विल टेक इट लेटर। इफ आई गो टू जिम 6 days a week, हाउ मेनी डेज शुड आई गिव टू कैलिस्थेनिक्स? 3 days। तन्वी, 3 days इज गुड इनफ। वेरी तन्वी, स्टार्ट विद 3 days a week, है ना, एंड धीरे धीरे यू कैन देन स्विच। देयर इज ऑल्सो वन डिफरेंट टाइप यू कैन अप्रोच, इज लाइक फर्स्ट वीक इफ यू आर ट्राइंग कैलिस्थेनिक्स, फर्स्ट वीक सिर्फ कैलिस्थेनिक्स करो, बाकी मत करो। सेकेंड वीक से देन यू स्विच इट, बिकॉज फर्स्ट वीक पूरी नई मूवमेंट है, आपको बॉडी में थोड़ा सोरनेस होगा, मूवमेंट समझने में टाइम लगेगा, एंड देन यू कैन डू दैट। ओके, जस्ट एन अपडेट, जो जो एनरोल कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट भी भेज दो ऑन टू द नंबर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Classes will be started from February. Classes will start from Monday, day after tomorrow. I'm fasting for next 15 days, and then Ramadan will start. Can I practice while fasting? Yes, definitely you can. बस intensity कम, that is fine. Movement ज़्यादा करो. The more movements you will do, the body will adapt in such a way. आपको pushing, strengthening वो सब नहीं करना उस टाइम पे जब आप फास्ट कर रहे हो, मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। मूवमेंट्स जब भी हमारा, जैसे इफ माई बॉडी इज वेरी सोर टुडे एंड आई कैन नॉट ट्रेन, मैं एनर्जी नहीं है, आई प्रैक्टिस द मूवमेंट्स। मैं बता रहा हूँ, मूवमेंट्स सीखने में बहुत टाइम लगता है और मूवमेंट चले भी जाते हैं जल्दी, जैसे प्रोट्रैक्शन हो गया, जैसे प्लांच लीन्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो हमें बार बार मूवमेंट्स करने होते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में जहाँ पे यू कैन नॉट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, you practice movements. All right, okay, good enough. One last question for the classes wala. Baki, we will start with the general Q&A. There are a lot of questions actually. आराम से करते हैं सब कुछ.
प्लीज सेंड डिटेल्स फॉर द क्लास। आई हैव सेंड द डिटेल्स। ओके जस्ट अ मिनट, मैं फिर से ज्वाइनिंग लिंक एक और बार भेज देता हूँ। So this is the link, इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक द डिस्काउंट कोड विल बी देयर एंड यू कैन जॉइन द प्रोग्राम। टाइमिंग्स आर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मॉर्निंग 6 to 7, 7 to 8, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इवनिंग 6 to 7, 7 to 8। और जिस जिस दिन इवनिंग के क्लासेस है, मॉर्निंग में एक एक सेशन होता है, जिस दिन मॉर्निंग में क्लास होता है इवनिंग में एक एक सेशन होता है। वो पोल से डिसाइड होता है कि किस टाइम पे होगा। ओके ऑलराइट फरीदा। अच्छा ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द जनरल Q&A नाउ। काफी सारे क्वेश्चंस हैं। कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चंस अगेन इफ यू हैव आस्क्ड बिफोर। आप कोई क्वेश्चन है तो आप फिर से पूछ लो। आई विल गो वन बाय वन उस हिसाब से। सर बिल्कुल ही बेसिक से पुशअप्स करने हैं तो हैंड स्टैंड में कितना टाइम लगेगा? सी मैं एक वेरी फन फैक्ट बताता हूँ कि हैंड स्टैंड सीखने के लिए पुशअप्स नहीं भी आते हैं देन ऑल्सो यू कैन डू हैंड स्टैंड्स। ठीक है, साउंड्स समथिंग कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हो, लेकिन इट इज ट्रू। वी हैव पीपल दोज, हमारे पास लाइव एग्जांपल्स है जो लोग वन पुशअप भी नहीं कर पाते बट दे कैन डू हैंड स्टैंड्स। व्हाई इट इज सो? बिकॉज हैंड स्टैंड इज स्ट्रेट आर्म मूवमेंट। हैंड स्टैंड में आप अपने हाथों को बेंड नहीं करते हो। इसका रिक्वायरमेंट होता है हैंड स्टैंड करने के लिए, अगर आप वॉल के सहारे खुद को 30 सेकेंड्स के आसपास होल्ड कर सकते हो देन यू आर रेडी फॉर डूइंग हैंड स्टैंड्स। ठीक है, तो उसका रिलेशन नहीं है, द रिलेशन इज समवेयर डिफरेंट। वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल हम एग्जैक्टली इशू कल हम एग्जैक्टली जब हैंड स्टैंड प्रैक्टिस करेंगे ना, दैट इज द टाइम आई विल टेल यू। और आपको भी पता चलेगा कि पुशअप तो जरूरी नहीं है। सर 3 क्लासेस ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यू कैन अटेंड एवरी डे ऑल द क्लासेस। अराउंड 18 क्लासेस होते हैं इन अ वीक, यू कैन अटेंड 18 ऑफ देम ऑल्सो। आई रिकमेंड टू अटेंड मिनिमम 3 क्लासेस, है ना, बिकॉज मिनिमम 3 क्लासेस आर मस्ट फॉर यू टू मेक प्रोग्रेस। उसके बाद आप कितने भी अटेंड करो दैट इज फाइन। हाउ टू रिड्यूस बैक शोल्डर? अच्छा हाँ, व्हाट्स द ऐप नेम? वंस यू एनरोल इन द प्रोग्राम आपको ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस मिलेगा। सागर यस, क्रांति प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस पार्ट। सर मेरे यहाँ पे जगह रहता ही है ऑलमोस्ट हर टाइम। तो जैसे मैं कुछ मूवमेंट की एक्सरसाइज की तो ठीक हो गया, फिर से हो जाता है। जैसे जब मूवमेंट नहीं हो रहा है कुछ तो फिर से स्टिफ हो जाती है मसल्स एंड पेन होता है। वो इसी जगह ही होना चाहिए। वो बोन पे होता है, इट इज बोन के आसपास। बिलो द नेक, बिलो द नेक या शोल्डर पर है? शोल्डर के थोड़ा इस साइड नीचे। शोल्डर और नेक के बोन शोल्डर बोन आपका बोन होती है ना पीछे। स्कैपुला सर। स्कैपुला बोन, समझ गया मैंने कहा समझ गया। बोन। ओके तो हाँ 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 बोन राइट। तो आपका मसल पर हो रहा है आपको पेन कि बोन पर हो रहा है एग्जैक्ट? बोन का मतलब कि पेन बोन, शार्प होगा। हाँ बोन मेरी शायद यहाँ पे थोड़ी उठी भी है ज्यादा, मुझे ऐसा फील होता है। यहाँ पे थोड़ी सी कम है, बोन में ही होता है शायद। ऐसा मुझे फील होता है कि मेरी बोन यहाँ से थोड़ी बड़ी सी है। हाँ पता नहीं। इज इट? एक तो इम्बैलेंस हो सकता है वो, दैट माइट यू माइट फील बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस, या फिर मूवमेंट करते हो तो लाइक किस मूवमेंट पे आपको, अभी हमने जब किया था किस मूवमेंट पे पुशअप्स करते समय आपको पेन आया? पुशअप्स में तो नहीं, ओके बट जिससे मैं नेक रोटेट करती हूँ या नेक बेंड करती हूँ तो जैसे नेक बेंड किया तो फिर हाँ यहाँ पे वो फील होता है पेन। ऐसे भी समझ किया तब भी इधर ही होगा वो चीज। समझ गया। आई गॉट इट, आई गॉट इट। इट इज मोर ऑफ आई गेस लाइक सर्वाइकल टाइप थिंग है वो। तो सर्वाइकल लाइक नेक के आसपास के जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है ना, वो सर्वाइकल से रिलेटेड होती है। उसके उसके ना हमें आपको थोड़ा स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग दोनों, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी लानी पड़ेगी उसमें। स्टिफ हो गया शायद वहाँ पे मसल्स ना, तो उसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा आई गेस, इसलिए आपको वन साइड इम्बैलेंस लगता है। तो ज़्यादा प्रेशर उस जगह पे आ रहा है आपको जब आप मूवमेंट्स कर रहे हो, तो उसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन डू दैट, बट
ट्राई डूइंग मोर ऑफ उसके जो सराउंडिंग मसल्स है ना, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने से स्टार्ट करो, या थोड़ा उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्टार्ट करो, एंड धीरे धीरे मूव टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, है ना। और एल्स यू कैन लाइक एक फिजियो के साथ सेशन कर लोगे, दे विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। अभी भी मैं ऐसे नहीं बता पा रहा हूँ आपको, बट दे विल टेल यू प्रॉपरली कि किस तरीके से उसे करना होता है ना। इवन yesterday ओनली आई हेल्प समवन विद द सेम काइंड ऑफ इशू, बट उनका एग्जैक्ट नेक के नीचे है ना, आपका थोड़ा सा साइड में आ रहा है वो, कैन यू डू साइड दिस, में है। आ रहा है, हाँ। तो दैट इज हाउ वी क्योर दैट पार्ट अप, ओके सर। but that will help. Yeah. Um, to get into calculus, so what should be my 1 month goal as complete beginner? No prior exercise experience. सो सी सबके लिए सबका स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट प्रिंस। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो मुझे नहीं पता ना, तो आई कैन गिव यू अ गोल। अगर आप ऑलरेडी 10 पुशअप करते हो और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट मंथ का गोल 10 पुशअप रखो, इट डजंट मेक सेंस। तो वॉट एवर योर स्टार्टिंग पॉइंट इज, make sure कि 1 month में you stay consistent with the routine that you have made for yourself, and आपका like 10% ज़्यादा प्रोग्रेस हो हर चीज़ में। तो फाउंडेशन पे अगर वर्क कर रहे हो तो लेट्स से कि पुशअप्स और बाकी जो सारे फाउंडेशन एक्सरसाइजेस है उनमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो, है ना। तो 1 मंथ का तो वही गोल रखो, यू शुड बी एबल टू डू दैट, एंड 1 to 2 स्किल्स जो इजी स्किल्स होते हैं यू शुड बी एबल टू डू दैट। तो ये गोल रखो स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर और स्पेसिफिक जाना पड़ेगा तो आई हैव टू नो मोर अबाउट यू, योर ट्रेनिंग, वो सब चीज़ें। ओके guys, a quick update, just a minute. So we have 6 spots left for the enrollment, ठीक है, for the program. So if anybody who is enrolling, so we have 6 spots left. Please make sure कि you do it timely, or else you won't be able to enroll into the program. All right, any more questions? Hi all, sorry for I joined late. Did I miss anything important? If you have joined now, तो आपने बहुत सब पूरा क्लास मिस कर दिया है। So is push pull leg good for weak? Yes, depends. But हाँ, it is good only. Bad तो नहीं है। Tomorrow session starts at 8. Yes, starts at 8. Okay. I feel there are no like questions अभी। सर मैं इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ तो क्या कैलिस्थेनिक्स मुझे फ्लेक्सिबल होने में हेल्प करेगा? Yes, definitely it will help you a lot. Thank you. I can do 35 push-ups max. What should I go for? Go for variations first. सारे push-up के variations complete करो, and then go for pseudo push-ups and everything. All right. One more last question, if anybody has. Do we have any backup of this? Is there any way we can watch? Please attend tomorrow's class. That is how you will be able to get to know. The session is not recorded. Okay, thank you sir. बहुत doubts clear हुए और बहुत कुछ सीखने मिला. You're welcome. Normal push-ups के just बाद which variation is suggested? Wide grip, close grip. है ना? Close grip रख के push-ups, wide grip रख के push-ups. Thank you sir. I enjoyed the session. You're welcome Manan. All right. तो those who are enrolling into the program, please make sure कि आप उस screenshot इस number पे भेज दो. I'm sending you the number again. The team will be able to add you. I'll see you tomorrow. कल हम different skills करेंगे, handstands को break down करेंगे. It will be very fun, enjoyable होगा. Okay. See you tomorrow, guys. Have a good day. Bye.